Namaskar. Ladies and gentlemen, it is an honor to have the presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, to grace this momentous occasion. On behalf of Minister, we extend a heartfelt and gracious welcome to President of India. We would also like to extend our distinguished guests who grace the days with their presence today. Shri G. Kishan Reddy, Honorable Minister of Coal and Mines. Please welcome Shri Satish Chandra Dubey, Honorable Minister of State for Coal and Mines. साथ ही इस सुअवसर पर श्री वी.एल. कांता राव, सचिव खान मंत्रालय तथा श्री असित साहा, डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी स्वागत करती हूँ. And our esteemed guests, geoscience fraternity from all across India who've joined us this morning for this prestigious award function, we welcome you all. Reports the achievements of this beautifully captures the importance of the work of all our geoscientists. We are well aware of the importance of exploration of critical and strategic minerals to build the Atmanirbhar Bharat, and now when we are working development, green and renewable energy, electrical vehicles, advanced engineering and commercial space trade. Your accomplishments, ladies and gentlemen, this has the importance of one of the oldest and most prestigious awards in the field of geosciences, the National Geoscience Awards. Today, we are the extraordinary achievements of our 21 geoscientists being awarded in the various fields of geoscience. और अब सम्मानित अतिथिगण का स्वागत करने के लिए तथा कार्यक्रम की महत्ता पर प्रकाश डालने के लिए मैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ वी.एल. कांता राव को आमंत्रित करती हूँ. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Union Minister of Coal and Mines, Kishan Reddy ji, Honorable Minister of State for Coal and Mines, Dubey ji, Director General Geological Survey of India, Shri distinguished guests, esteemed awardees, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to welcome all of you to the National Geosciences Awards 2023 ceremony today. Today we gather to celebrate the exceptional contribution of our geoscientists whose work has been instrumental in our nation's mineral exploration and scientific research. The National Award established by the Ministry of Mines in 1966 is one of the oldest and most prestigious national recognitions in the field of geosciences. These awards were initially known as National Mineral Awards, whose accolades honor individuals and teams for extraordinary achievements and outstanding contributions in areas such as mineral discovery, fundamental and applied geosciences, mining and allied fields. The award categories include the Geoscience Award for Lifetime Achievement, the Geoscience Award, and Young Geoscientist Award. These are presented across multiple sectors such as mineral discovery, mining, beneficiation, and sustainable mineral development. The areas also include basic geosciences and geosciences. Since there are about 900 awardees till date. The selection process involves a meticulous, rigorous, and robust three-tier process to ensure fairness and excellence. The initial screening is conducted by a committee of experts consisting of domain specialists who evaluate the applications based on a set criteria. In the second tier, a screening committee reviews the shortlisted candidates' contributions. And finally, the award-making authority, eminent experts from various fields, makes the final selection. The comprehensive process involves a meticulous assessment of quality and the impact of work done by the nominees, ensuring that the award recognizes
most outstanding contribution in the field of geosciences. For the National Geoscience Awards 2023, today, a total of 21 individuals are getting awards in 12 categories. These awards are 1 award of Geoscience Award for Lifetime Achievement, 10 awards for the Geological Survey of India, and has been central to India's geoscientific progress for almost 175 years. Besides onshore exploration, the ministry has prioritized offshore mining exploration as well, with GSI identifying promising offshore blocks and to take up soon. This initiative aims to tap into the rich mineral wealth beneath the ocean floor and diversify India's mineral resource base. The establishment of NGDR, the National Geoscience Data Repository, is a flagship of the Ministry of Mines. The NGDR serves as a comprehensive platform for exploration-related geoscientific data, making it accessible to stakeholders and ensuring that exploration activity is enhanced in the country. In all these endeavors, the foundation is the sincerity, ingenuity, and hard work of our geoscientists. I am heartened to see so many being recognized today through the National Geoscience Awards. I extend heartfelt congratulations to all the awardees. Your dedication and excellence are vital to our nation's progress. I also tribute to the field, from researchers to field workers, for their unwavering commitment. As we look ahead, let us responsibly explore and utilize our geological wealth, ensuring a prosperous and sustainable future for India. I wish you all a memorable and inspiring day ahead. I request that we are all honored, all of you, to join in welcoming her. Thank you, Secretary Sir, for setting the tone for this award function. And now we move forward to the highlight of the day. मैं माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से अत्यंत विनम्र भाव से आग्रह करती हूं कि कृपया पुरस्कार प्रदान करने के लिए मंच पर आगे आएं। माननीय राष्ट्रपति जी, I humbly request Honorable President to kindly confer the National Geoscience 2023. I request all our distinguished guests to kindly join her. In the field of mineral discovery and exploration, the National Geoscience Award is conferred on the team of Geological Survey of India for their exploration work for the Machnoor 7 million tons of copper and 1.7 million tons of gold resources. The team comprises of 4 geoscientists. सबसे पहले पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर पधार रहे हैं कुमार शुक्ला। Now I invite on stage Srimati Tiffany De Silva to receive the award. Shrita. And now I invite on stage Dr. M.N. Praveen. In the same field of exploration, the award is also being conferred on the team of Geological Survey of India. Ladies and gentlemen, Viksit Bharat at 2047 is a dream we are all striving for. And the role of our geoscientists is crucial to achieving this goal. I now take this opportunity to invite Shri G. Kishan Reddy, Honorable Minister, to grace us with this address. Honorable Minister. भारत की महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्रीमती मुर्मू जी, कोलन मेंस के मेरा साथ मंत्रिमंडल के सदस्य श्री चंद्र दुबे जी, माइंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी श्री वीएल कांताराव जी, सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल
श्री उपस्थित साइंटिस्ट्स, अवार्डीज, मिनिस्ट्री के अधिकारीगण, विभागों के देवियों और सज्जनों, आप सबको माइंस की ओर से मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आज महामहिम राष्ट्रपति जी की इस गरिमामयी उपस्थिति में नेशनल जियो हिस्सा बनकर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए समय दिया है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत के प्रभावशाली जियो साइंटिस्ट को पुरस्कार प्रदान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने मैं धन्यवाद देता हूं। आज सम्मानित होने वाले 21 जियो साइंटिस्ट्स को भारत सरकार की ओर से बधाई देता हूं और अपने के समर्पण और बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद भी देता हूं। हमारे इंडस्ट्रीज को फ्यूल देने वाले मिनरल रिसोर्सेस की एक्सप्लोरेशन, सिस्मिस एक्टिविटीज को समझना और क्लाइमेट एक्शन में जियो साइंस रिसर्च में भारत को एक ग्लोबल पावर हाउस बनाने आप सबको जियो साइंटिस्ट को बहुत बड़ा भूमिका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 दिन पहले ही 15 अगस्त को लाल किला से फिर एक बार विकसित भारत के संकल्प को भारत की जनता के सामने रखा है। इस विकसित भारत 2047 विजन में मिनरल एंड माइनिंग सेक्टर का महत्वपूर्ण भूमिका होगी। माइनिंग सेक्टर में पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऐतिहासिक बदलाव लाई हैं, जिससे इस क्षेत्र में ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा मिला है। हाल ही में 2024 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्रिटिकल मिनरल्स की मिशन की भी घोषणा की गई है। क्रिटिकल मिनरल्स मिशन भारत को इस क्षेत्र में बनाने का, जिसको पूरा करने में जियो साइंटिस्ट का योगदान महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार 10 वर्षों में माइन मिनिस्ट्री ने मिनरल एक्सप्लोरेशन, मिनरल क्रिटिकल और आत्मनिर्भरता बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। इसी दिशा में MMDR एक्ट में अमेंडमेंट्स सेक्टर में एक पैराडाइम चेंज लाया गया है। इस अमेंडमेंट के द्वारा 24 स्ट्रैटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स की एक्शन पॉलिसी केंद्र सरकार लिया है, जिसके परिणाम आज अभी तक 14 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की ओपन एक्शन का गई हैं। अब प्रायोरिटी भारत सरकार दे रही है। ऑफशोर एरियाज में पहली बार मिनरल ब्लॉक्स की एक्शन करने वाले हैं। ओशियन फ्लोर में नीचे रिच मिनरल वेल्थ का सही उपयोग करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर रही हैं, बल्कि भारत के मिनरल रिसोर्सेस बेस में डाइवर्सिफाई करने के लिए स्ट्रैटेजिक कदम भारत सरकार उठा रही है। जियो साइंस में आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी की जैसी एडवांस्ड अपना से एक रेवोल्यूशनरी चेंज हम लाने वाले हैं। जियो साइंटिस्ट का काम हमारे जीवन को प्रभावित करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट रोड मैप को सुनिश्चित भी करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति हमारी कमिटमेंट है। आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर मैं बधाई देना चाहता हूं। आपका काम जियो साइंस के फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रेरणा बनेगा। मैं सभी जियो साइंटिस्ट को अपने रिसर्च एक्टिविटीज के द्वारा हमारा देश का
विकास में कमिटमेंट के साथ पूरा योगदान देने के लिए मैं आइए हम सब मिलकर भारत लीडर बनाने में और विकसित भारत 2047 टारगेट को प्राप्त करने के दिशा में हम और कमिटमेंट के साथ आगे काम करेंगे। आखिर में फिर एक बार राष्ट्रपति महोदय को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपके उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। और सज्जनों, माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति के लिए अत्यंत कृतज्ञ हैं। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर माननीय मैं आदरपूर्वक विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूं कि कृपया अपने सुवचनों से हमें आशीर्वाद दें। स्वागत करें माननीय राष्ट्रपति जी का। जियो साइंस अवार्ड्स 2023 की प्रेजेंटेशन से एवं खान मंत्री श्री खान राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, खान मंत्री BL कांता राव जी, सर्वे ऑफ इंडिया के महानिर्देशक श्री असित शाह जी, विशिष्ट अतिथिगण, जियो साइंटिस्ट एवं अन्य वैज्ञानिकगण, देवी और स्वजन, नेशनल जियो साइंस अवार्ड के इस समारोह के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जियो साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों और मूल्य योगदान के लिए वरिष्ठ और युवा पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इन पुरस्कारों के माध्यम से जियो साइंस के क्षेत्र में हो रही उन्नति और उससे जुड़े सभी लोगों के योगदान को मान्यता दी जाती है। ये उल्लेखनीय है कि आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजय राष्ट्रीय संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थानों से है। पुरस्कार विजेताओं में ये विविधता जियो साइंस के प्रति बढ़ रही जागरूकता और इस क्षेत्र में देश के विभिन्न हिस्सों में अनुसंधान को दर्शाती है। आपके समर्पण, जिज्ञासा और नवाचार के कारण महत्वपूर्ण अध्ययन हुई है और जियो साइंस के क्षेत्र भी हुई है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट तथा बेसिक और अप्लाइड जियो साइंसेस की श्रेणियों में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। जियो साइंटिफिक रिसर्च की उन्नति का प्रमाण भी है। अपने कार्य से न केवल पृथ्वी के संसाधनों के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करते हैं, बल्कि भावी जियो साइंटिस्ट के लिए भी मानक स्थापित करते हैं। इस क्षेत्र में अपना उपयोगी योगदान देवियों और स्वजनों, जब जियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात होती है तो समझ में आता है कि मानव इतिहास उसका एक छोटा सा भी हिस्सा है। ह्यूमन इवोल्यूशन में भी जियोलॉजिकल प्रोसेसेस की भूमिका पर आज गहन अनुसंधान हो रहा है। हमारे आसपास हो रहे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स और नेचुरल डिजास्टर्स को समझने और उनका सामना करने के लिए जियोलॉजी स्पेशलाइज्ड स्टडी है, लेकिन हमारी बोलचाल की भाषा से भी भूगर्भ से जुड़ी घटनाओं के महत्व का पता चलता है। जब कोई बहुत ही बड़ा बदलाव होता है तो उसे टेक्टोनिक शिफ्ट कहा जाता है और ये पैराडाइम शिफ्ट से भी बड़ा होता है। हमारे देश में अनेक महान जियोलॉजिस्ट के उदाहरण हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया और इंडियन जियोलॉजी में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले भारत श्री MS कृष्णन और श्री DN वाडिया का उल्लेख करना, जिन्होंने भारत में जियोलॉजिकल स्टडीज विद किया। आप सबका एक कर्तव्य है कि आप उनकी सोच और कार्य से प्रेरणा लें, क्षेत्र और देश के लिए अपना अमूल्य योगदान दें। देवियों और स्वजनों, भारत के 2047 राष्ट्र बनने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना महत्वपूर्ण है। खनिज क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सराहनीय प्रयास किए जा रहा है। विश्वास मुझे बताया गया है कि खान मंत्रालय ने नेशनल
जियो साइंस डेटा की शुरुआत जो देश भर से जियो साइंटिफिक डेटा को समेकित करता है। ये सराहनीय है कि जीएसआई खनिज अन्वेषण की नई टेक्निक खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उभरती टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहा है। ऐसे अनेक कदम खनिज संसाधन की खोज और खनन में सहायता कर रहे हैं, जिससे हम अपने प्राकृतिक संपदा को बेहतर ढंग से समझने और उसका उचित उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे। सस्टेनेबल दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए प्रतिबद्ध है। क्लीन एनर्जी को बड़े स्तर पर अपनाने के हमारे प्रयास इस लक्ष्य के अनुरूप है। भूवैज्ञानिक ज्ञान लो कार्बन एनर्जी परियोजनाओं की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करता है। ग्रीन ट्रांजिशन क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर जैसे खनिजों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इस साल बजट में भारत सरकार ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की घोषणा भी की है, जिसका उद्देश्य भारत को आर्थिक विकास और ग्रीन ट्रांजिशन के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल्स में आत्मनिर्भर बनाना है। मुझे बताया गया है कि इस मिशन के अंतर्गत क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। सस्टेनेबल माइनिंग की भी भारत के क्लाइमेट चेंज संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये प्रशंसनीय है कि देश में जो सुधार हो रही है वे न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा बल्कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं। इस संबंध में जियो साइंटिस्ट का सहयोग अमूल्य है। देवियों और सज्जनों, जीएसआई कोलकाता में नेशनल लैंडस्लाइडिंग सेंटर की हाल ही में स्थापित किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि ये सेंटर आने वाले दिनों में उचित समय पर सभी भूस्खलन संभावित राज्यों के लिए अर्ली वार्निंग बुलेटिन जारी करेगा। अभी कुछ दिन पहले हमने देश के कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं देखी, जिनमें अनेक लोगों की अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने सिस्टम्स को इतना फुल प्रूफ और एक्यूरेट बनाएं कि ऐसे आपदाओं से किसी भी भाग में कम से कम नुकसान। आज मुझे यहाँ अनेक युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को देखकर खुशी हो रही। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि कई ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए आप अपने कौशल और क्षमता का पूरा उपयोग करें। आपका उत्साह और इनोवेटिव स्पिरिट हमारे देश को आगे लेकर जाएंगे। भारत का भूविज्ञानिक इतिहास, इसकी चट्टानों, मैदानों, फॉसिल्स और मेराइन बेड्स और इसे हम अपनी जियोलॉजी सकते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि जियो टूरिज्म और जियो हेरिटेज साइट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स के महत्व को समझें और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भी नए नए सुझाव दें। भारत जैसे डाइवर्स टोपोग्राफी वाले देश में तो जियो टूरिज्म लोगों को जियो साइंस से संबंधित जानकारी भी दी जा सकती है और उन्हें इस क्षेत्रों में आने के लिए प्रोत्साहित भी किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आप सभी वैज्ञानिक और शोधकर्ता साइंस के क्षेत्र में भारत को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करेंगे और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देंगे। अंत में फिर मैं सभी पुरस्कार देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। जय हिंद। राष्ट्रगान।